गुड मॉर्निंग। इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बुक नंबर 01 IC 01 is the book prescribed for principle of insurance. This is the compulsory subject for those who are giving a licentiate examination. Licentiate examination के लिए 01 principle of insurance and practice of life insurance or practice of general insurance is compulsory subject. Other than these two subjects, one can opt for any other subject. So after passing three subjects at initial stage, you are awarded with the diploma or licentiate certification from III Insurance Institute of India, Mumbai. This is the video we are bringing for your knowledge from Indore Insurance Institute, and I am Mohan Vatnani, which is who is giving the commentary. Okay, so just enjoy this video with me. प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं हमारे जो इंश्योरेंस के लिए अप्लीकेबल हैं। कॉमन लॉ प्रिंसिपल्स हैं जो बाद में इंश्योरेंस एक्ट के अंदर आ गए हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस किसी भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लेट मी क्लियर वन थिंग, दैट इंश्योरेंस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट and it is governed by इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 1872 का जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो बोलता है देयर मस्ट बी टू आर मोर पार्टीज, दे मस्ट बी मेजर, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और ये पार्टीज विच आर मेकिंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड की होना चाहिए, 18 साल के ऊपर होना चाहिए, और इन दोनों के पार्टीज़ के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में कंसिडरेशन मीन्स लेन देन होना चाहिए। कोई व्यक्ति पैसा दे रहा है, प्रीमियम दे रहा है, द अदर पार्टी इज़ गिविंग प्रॉमिस टू पे द क्लेम इन द इवेंट ऑफ कॉन्टीजेंसी, दिस इज़ नोन एज कंसिडरेशन। फिर इसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में आपसी सहमति होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी चीट और डिसीट, कोई उसमें फाउल प्ले नहीं होना चाहिए। एंड देन द रिक्वायरमेंट इज़ दैट द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फॉर ए मीनिंगफुल पर्पस, फॉर ए लीगल पर्पस, एक्टिविटी शुड बी लीगल and it should not be forbidden by law, it should not be against public policy. So these are the requirements which are mentioned in the Indian Contract Act 1872. Having complied with this insurance contract, having complied with this Indian Contract Act 1872, next compliance required in insurance contract is for insurance principles. These principles are: number 1, utmost good faith; number 2, insurable interest; then indemnity, principle of indemnity, followed by principle of contribution, subrogation, and proximate cause. Unless and until we comply with both the things, one is Contract Act 1872, the other is insurance principles, the contract of insurance is not complete. So let us discuss one by one as now what is contained in chapter 1. Chapter 1 of 01 IC 01 principle of insurance is based on risk management. You know, risk is present everywhere, हर जगह रिस्क होती है। घर में बैठे हैं तो भी रिस्क है, घर से बाहर निकल रहे हैं तो भी रिस्क है। ये बताइए रिस्क कहाँ नहीं है? हर जगह रिस्क है। फैक्ट्री लगाएंगे तो बिजनेस रिस्क है, बिजनेस करेंगे प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, बाहर निकलेंगे एक्सीडेंट हो सकता है। सो रिस्क इज़ प्रेजेंट, इट इज़ इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी हैव टू लिव विद द रिस्क। अभी तो कोविड का सबसे बड़ा रिस्क है। सो दिस चैप्टर aims to provide as how we can manage the risk, how we can understand the risk,
how we can evaluate the risk, how we can assess the risk, and mostly risk in insurance terms is financial risk. रिस्क तो बहुत सारी होती हैं, सेंटिमेंटल रिस्क है, हम दुखी हो जाते हैं वो भी रिस्क है, बिजनेस रिस्क है, बट मेन इंटेंशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एज फार एज इंश्योरेंस इज कंसर्न, इट इज़ रिलेटेड टू फिनेंशियल रिस्क, है ना, विच इज़ प्योर रिस्क ऑल्सो. So we deal in insurance with pure risk factors, and now we would discuss as what are the techniques, what are the management functions by which we can decide as how to control or minimize risk. There are 4 ways. अगर हम रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो देर आर ओनली 4 वेज, 4 ब्रॉड कैटेगरीज बाय विच वी कैन कंट्रोल द रिस्क. नंबर 1 इज़ रिस्क है तो उसको मिनिमाइज़ करो. लाइक अगर बाहर जाने में स्कूटर से गिरने का डर है, हम हेलमेट वियर करते हैं, गाड़ी में जाते हैं तो सीट बेल्ट लगाते हैं जिससे रिस्क को कम किया जा सके. सो नंबर 1 इज़ रिस्क मिटिगेशन, risk minimization. Number 2 is risk avoidance. रिस्क को अवॉइड कर दो. तो रिस्क को अवॉइड करेंगे, रिस्क ना रहेगी. रिस्क को अवॉइड करने के बाद रिस्क को रिटेन भी कर सकते हैं. ओके, रिस्क है, लेट अस अडॉप्ट इट, लेट अस टेक इट. अगर कुछ नहीं हो रहा है तो चलो रिस्क को हम रख लेते हैं. और द 4th वन इज़ रिस्क ट्रांसफ़र. हम इंश्योरेंस को रिस्क को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को हैंड ओवर कर सकते हैं. तो ये 4 तरीके हैं जिनसे हम रिस्क को मैनेज कर सकते हैं. सो विद दिस इनिशियल ब्रीफिंग ऑन रिस्क मैनेजमेंट, लेट अस टेक वन मोर वीडियो on risk management where we will learn what is peril, what is risk, what is hazard, what is physical hazard, moral hazard. All these things will be dealt in a second video. Meanwhile, just enjoy a few books, make books as your friend, and read more and more books to enjoy a period of lockdown. Okay, so thank you very much. Soon we are meeting with the second video. Thank you.